ma'am? Yes, sir. Yes, you are audible, sir. Okay, ma'am. Let me share my PPT first. Yes. सर तुम्ही शेअर करू शकताय का की मला तुम्हाला प्रेझेंटर बनवावं लागेल? जस्ट अ मिनिट, लेट मी चेक. हाँ प्रेजेंटर करून टाकाल प्रेसवर. हां, जस्ट अ मिनिट सर. हां. या प्लीज. हां सर, आता एकदा चेक कराल? ओके मॅम. हं. Yes. Is it visible now, ma'am? हां. Yes, sir. Webex screen is visible. Kindly open your PPT, sir. Yeah. Yes. It is visible, sir. Okay, ma'am. So once again, good morning to one and all. Our today's session is based on the topic Introduction to Cybersecurity, Understanding Cyber Threats. Am I audible to all of you? Yes, sir. Sir, kindly show your first slide. I just want to take a snap of Okay, it. ma'am. No issue. Yeah. Just a minute. Yes, sir. You can go ahead. Yeah. Okay. Thank you, madam. So friends, today we are going to discuss concept on cyber security. So let me clear the meaning of cyber security first. Cyber security is the practice of protecting computer systems, networks, devices, and data from digital attacks, damage, or unauthorized access. It involves using various technologies, processes, and best practices to safeguard information and systems, ensuring the confidentiality, integrity, and availability of data and services, and reducing the overall risks of cyber threats. So we observed nowadays we have a victimized of different cyber attacks. So in an increasing digital world, cybersecurity is essential to prevent the data breaches and financial loss, maintain trust and reputation, comply with legal and regulatory requirements, and ensure uninterrupted operations. Okay, one thing I want to ask, in between our discussion, shall I continue in English or I have to use Hindi also? Sir, Hindi, English we will mixed with. Okay, ma'am. Okay, yeah. So friends, what happened? Nowadays, most of the peoples are victimized of different cyber attacks from the cyber attackers. In this situation, what we do? सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रखना आवश्यक है. So to prevent our data breaches and financial loss, we have to maintain the proper security of our databases of our digital assets. So for maintaining the trust and reputations, comply with legal regulatory requirements, and ensure uninterrupted operations. Now the very first topic is here, cyber attacks. अब साइबर अटैक क्या होता है? साइबर अटैक में हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क्स है, इस पे अलग अलग मैलिशियस कोड्स आते हैं जो हमारे डेटा को हैक करते हैं. और हैकर्स के थ्रू मेनली दो प्रकार के अटैक्स होते हैं. एक होता है वेब बेस्ड अटैक्स और दूसरा होता है सिस्टम बेस्ड अटैक्स. So in this case, what happens? It uses malicious code to alter the computer code or sometimes the logic or data and lead to cyber crimes such as information and identity theft. हमारी जो important जानकारी वो भी इसमें हैक की जाती है और उसका मिसयूज भी किया जाता है. So very first type is here web-based attacks. These are the attacks that are on websites mostly or on web applications. Some of the important web-based attacks are as follows. The very first is here injection attacks. Injection attack एक ऐसा mechanism है in which some data will be injected into a web applications to manipulate the applications and fetch the required information. इसमें hackers क्या करते हैं कि हमें SQL की query एक डेटा इनपुट हमारे किसके फॉर्म में सेंड करते हैं या हमारे सर्वर पे सेंड करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो मैलिशियस SQL क्वेरी है
हम लोग लिखते हैं, वैलिडेट कर देते हैं, एंड कमांड एग्जीक्यूटेड बाय द डेटाबेस. In between that, what happen? Hacker is granted to access to view and after records in the data on the database. यानी हमारा जो डेटा है एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू इंजेक्ट हो जाता है और जो इंपॉर्टेंट डेटा है मैलिशियस एसक्यूएल इंजेक्शन नेटवर्क के थ्रू वो हैकर्स के पास पहुंच जाता है. फिर इसके बाद हैकर्स क्या करते हैं कि हमारी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है, वो हैकआउट करके हमें टीज करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू करता है. समटाइम्स दे कैन ब्लैकमेल अस in the case of financial way also. Second is here DNS spoofing. DNS spoofing is a type of computer security hacking whereby data is introduced into a DNS resolver cache, causing the name server to return an incorrect IP address. And sometimes they can divert the traffic to the attacker's computer or any other computer. इस केस में क्या होता है कि हम एज ए यूजर, जो क्लाइंट होता है, हम लोग क्या करते हैं कि कई सारे वेबसाइट्स पे डेटा सर्व करते हैं. अब इस केस में जैसे हम यूजर ने पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए डेटा रिक्वेस्ट सेंड की, अब अटैकर क्या करेगा, उसको जो डोमेन नेम सर्वर है हमारा, उसका आईपी एड्रेस क्या करेगा, उसको इंजेक्ट कर लेगा, फेक डीएनएस एंट्री करवाएगा और हमारा जो भी एक्सेस रिक्वेस्ट है वो किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे ट्रांसफर हो जाता है. So request resolves to fake website and then we are not able to access the real website. इसके बाद वेबसाइट पे हमारा डेटा या रिक्वेस्ट ट्रांसफर होगी विद द हेल्प ऑफ डीएनएस स्पूफिंग मैकेनिज्म. फिर हमारी जो कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन है, मोबाइल की इंफॉर्मेशन है या लैपटॉप की जो इंफॉर्मेशन है, ये इमीडिएट एंड देन द हैकर्स विल ट्राई टू अटेम्प्ट the loss of our data, or they are trying to attempt with the financial losses also. That is the possibility in DNS spoofing. Next is there session hijacking. It is a security attack on a user session over a protected network. Web applications create cookies to store the state and user sessions. But attacker can have access to all the user data. जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इनोसेंट यूजर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, कहां पे, सर्वर पे. सो ऑथेंटिक रिक्वेस्ट व्हेन वी आर टू सेंड, इन बिटवीन दैट द अटैकर और द हैकर्स विल सेंड द session hijacking mechanism. Through that our data will get theft with the session hijacking. So whatever the sessions we are working in the online mechanism, that can be totally hacked by the hackers and they can trap the multiple peoples and we may become the victimized of the particular event. Next is there phishing. Phishing is a type of attack which attempts to steal sensitive information like user login, credentials, and credit card number. It occurs when an attacker is masquerading as a trustworthy entity in electronic communication. So in most of the situation nowadays, we observe the phishing is a mostly used by the attackers to hack our data, and to most of the people will face this particular kind of problems, or most of the accidental situations will happen with the user and victim with the hacker. And with the help of electronic communication, our data can be hacked by the different users. इस केस में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पासवर्ड भी हैक किए जाते हैं और हमारा सिस्टम का ऑनलाइन में जब भी हम लॉगिन करते हैं हमारे सिस्टम के पासवर्ड्स के थ्रू, कोई भी हैकर हमारे सिस्टम का जो डेटा है, एक बार उसको अगर पासवर्ड पता चल गया तो अपना डेटा हैक कर सकता है और बाकी की जो भी हमारी फाइनेंशियल एसेट्स है या उसकी इंफॉर्मेशन है वो भी हैक हो सकती है. नेक्स्ट इज देयर ब्रूट फोर्स. It is a type of attack which uses a trial and error method. This attack generates a large number of guesses and validates them to obtain actual data like user passwords and personal identification number. So sometimes hackers can use this kind of mechanism that we call as a brute force attack. Am I audible to all of you? Hello? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So friends, what happened in most of the situation nowadays, we are using digital media accounts
like our Facebook or Twitter or any other kind. अब जनरली क्या होता है कि फेसबुक में जब भी हम हमारा यूजर अकाउंट जनरेट करते हैं, हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे फेसबुक अकाउंट पे होती है। जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया, हमारा स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपके फाइनेंशियल एसेट्स क्या है। और कई बार हम ऐसा करते हैं कि हमारे जो अचीवमेंट्स होते हैं वो भी हम लोग या अपने फोटोग्राफ्स मोस्टली अपने फेसबुक डिजिटल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हैं। अग्री? अब इसमें क्या होता है कि हैकर्स रेकी करते हैं हमारे सारे प्रोफाइल की, और जिससे जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका निकनेम हो गया, या घर के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, आपका स्कूलिंग कब हुआ है, या आप अभी कहाँ पर किस प्रोफेशन में वर्कआउट कर रहे हैं, ये सारा रॉ डेटा इनपुट लेके इस मैकेनिज्म में क्या करते हैं कि ब्रूट फोर्स में आपका जो भी डेटा है उसमें पोस्ट करते हैं। अब इसके लिए जनरली अभी सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। कई बार क्या होता है कि मैथमेटिक्स में थ्योरी है जिसको हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहते हैं। हमारा ये जो इंफॉर्मेशन है रॉ डेटा, इसका यूज करके ये मल्टीपल एन नंबर ऑफ पासवर्ड जनरेट करते हैं, और ये रैंडम फायर होता है जिसके थ्रू जो ब्रूट फोर्स मैकेनिज्म है इसके थ्रू कहीं ना कहीं हमारा एक पिन यानी पासवर्ड उसमें एक्टिव हो जाता है। क्योंकि ये मल्टीपल इनपुट्स जब हम फायर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पासवर्ड इजीली हैक हो जाता है, और जिसके थ्रू हम लोग विक्टिमाइज हो जाते हैं, और हैकर्स के लिए हमारी जो पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जानकारी, वो अवेलेबल हो जाती है। आगे फ्यूचर में वो हमें किसी भी प्रकार से वो ट्रैप करते हैं। मोस्टली उनकी फाइनेंशियल डिमांड्स होती है, या आपसे, जैसे आजकल हम देखते हैं कि टेररिस्ट जो होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं कि स्लीपर सेल एक यूज करते हैं। अगर उनको कोई भी बड़ा अगर कहीं पर एक स्कैम करना है या टेररिज्म की कोई एक्टिविटी करनी है, तो आजकल टेररिस्ट डायरेक्टली नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, कोई इनोसेंट पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे, कॉलेज स्टूडेंट हो गया, या उनको पहले टॉर्चर करेंगे, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन हैक कर लेंगे, और उनके थ्रू ये सारी एक्टिविटीज डील करवाते हैं। सो दैट कैन बी द वन ऑफ द पॉसिबल केस ऑफ ब्रूट फोर्स। आर यू अंडरस्टैंड दिस वन? हेलो? Yes, sir. Okay. Now the next Yes, one sir. is your denial of service. It is an attack which means to make a server or network resource unavailable to the users. It accomplishes this by flooding the target with traffic or sending it information that triggers a crash. Volume-based attacks, protocol attacks और application layer attacks. इस केस में क्या होता है, जो बोट मास्टर होता है यानी जो हैकर होता है, जैसे हमने पर्टिकुलर साइट के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया, और उस साइट का अगर हमें एक्सेस चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, एक किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का हो गया, अगर मान लीजिए कि ये बॉट मास्टर ने अगर उसको हैक कर लिया है, वो क्या करेगा कि जैसे ही उस इंस्टीट्यूट की साइट को हैक कर लेता है, सो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर विल कैप्चर्ड बाय दिस बॉट मास्टर। अब इस केस में जैसे ही एक लोकल यूजर जैसे आप सभी है, अगर आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे पर्टिकुलर साइट को एक्सेस करने के लिए, तो आपको बार बार मैसेज आएगा द सर्वर इज नॉट अवेलेबल, और सर्वर एरर, इस प्रकार का मैसेज आना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है कि ये जो हमारा रिक्वेस्ट ट्रैफिक है, या जो इंफॉर्मेशन हम लोग ट्रिगर आउट करते हैं मल्टीपल टाइम्स किसी पर्टिकुलर साइट के लिए, अब वो पर्टिकुलर सर्वर पर रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, किसी थर्ड पार्टी जो हैकर्स है उसके सर्वर पर रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो रही है, और हमारी जो भी रिक्वेस्ट है अगर किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर चली गई, तो फिर वो क्या होगा कि हमारी जो लॉगिन एक्सेस है या लॉगिन क्रेडेंशियल्स है हमारे, वो सारे हैकआउट हो जाते हैं, एंड देन वी विल बिकम द विक्टिमाइज ऑफ द सच काइंड ऑफ सिचुएशन. So that is one of the case that we call as a denial of service. Next is their dictionary attacks. So this type of attack stored the list of commonly used passwords and validate them to get original passwords. अब कई बार ऐसा होता है साइबर सिक्योरिटी में मोस्टली हमारे पास में बहुत सारी, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वोकैबुलरी लिस्ट होती है हमारी, वर्ड लिस्ट। अब हैकर्स क्या करता है कि टारगेट डोमेन जो है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स को वो टारगेट करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं पहले, और फिर ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू हमारी कॉमन इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन दे कैन स्टोर द लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज पासवर्ड्स एंड वैलिडेट देम टू गेट द ओरिजिनल पासवर्ड्स।
कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो अलग अलग डिजिटल अकाउंट्स होते हैं, लोकल पीपल क्या करते हैं कि जनरली हमारे सारे जो अकाउंट्स है उसके सभी के यूजर नेम और पासवर्ड जनरली कॉमन ही रखते हैं। और कई बार अगर ये डिक्शनरी अटैक्स का अगर मैकेनिज्म इन्होंने यूज किया तो हमारे अलग अलग, जैसे एटीएम के अगर आपके 2-3 अकाउंट है तो जनरली हम क्या करते हैं, हम एक ही कॉमन पिन रखते हैं। तो डिक्शनरी अटैक्स में हमारे जितने भी पिन या पर्सनल पासवर्ड्स है ये हैकर्स के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, एंड इन फर्दर वी मे बिकम द victimizes of this particular incidents. इसमें और एक इंपॉर्टेंट है URL interpretation. It is a type of attack where we can change the certain parts of a URL. URL stands for Uniform Resource Locator. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, and one can make a web server to deliver web pages for which he is not authorized to browse. यानी जिस URL को आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम में हमें अगर किसी भी साइट को एक्सेस करना है तो जनरली हम क्या करते हैं, किसी साइट का नाम डालते हैं। अग्री? अब वो साइट ऑथेंटिक है या नहीं ये हम कैसे पता करेंगे? जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम में, सबसे पहले लिखा है प्रोटोकॉल HTTPS। जब भी आप किसी साइट या URL लॉगिन को आप पोस्ट करेंगे गूगल क्रोम में, सबसे पहले हमें ये ऑथेंटिक करना चाहिए कि हमारा जो भी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो लिखा है यहाँ पे HTTPS, अगर इसके आगे यहाँ यस लिखा नहीं है इसका मीनिंग है कि ये सिक्योर्ड नहीं है। लेट अस ऑब्जर्व दैट। हेलो, सबसे पहले हमने देखना चाहिए कि जब भी हम किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं और URL पे हम पोस्ट करते हैं, बीए के बच्चे ऑडिटोरियम में जा रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं, तो सबसे गुरप्रीत पहले मैडम, सर एक मिनिट। हाँ, गुरप्रीत मैडम काइंडली म्यूट युअर सेल्फ. ऊपर देखकर ना तो ऊपर है बच्चे की नहीं सर मी म्यूट ऑल करते आहे, तुम्ही तुमच्याकडनं एकदा ग्रुप अनम्यूट में करून है, घ्या. चले जाइए। चार्टेड पर देख पार्टिसिपेंट्स थोड़ा ध्यान रखिए, आप सभी को म्यूट पे रहना है. इट इज डिस्टर्बिंग द क्लास, अदरवाइज आई विल एक्सपेल यू फ्रॉम द मीटिंग. यस सर, प्लीज कंटिन्यू. मैडम, शैल आई कंटिन्यू? यस यस प्लीज. Okay. Is the PPT visible to all of you? Hello, am I audible, madam? Sir, visible. Yes sir, yes, and screen is also visible sir. Okay, ma'am. Thank you. So, friends, most of the times what happen, whenever we have to insert the any particular website address on the URL portal, that time we should be careful and we should be very much conscious. तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपके साइट में URL में सबसे पहले HTTP लिखा हुआ है कि HTTPS है। अगर HTTPS लिखा हुआ है, this means the particular site or the particular portal name is valid. Then you are easily access that particular. Otherwise, we may in trouble in further. जैसे यहाँ दिख रहा है आपको प्रोटोकॉल लिखा हुआ है HTTPS:// थर्ड लेवल डोमेन जो लिखा है यहाँ पे, जिसको हम सेकंड नेम कहते हैं www.integer, सेकंड डोमेन लिखा है integer, और टॉप लेवल डोमेन हमारा .com। इसके बाद में ये इसका सब पाथ है पर्टिकुलर जो आपको पेज ओपन करना है। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन लिखी है www.integer.com, ये सब डोमेन और डोमेन नेम इसको हमने क्लासिफाई किया है, जिसको हम लोग होस्ट नेम कहते हैं। यानी जिस पर्टिकुलर साइट की इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर साइट को हम लोग यहाँ पर पुट अप करते हैं। तो हमेशा हम इस बात को कॉन्शियसली ध्यान में रखेंगे कि अगर आप किसी भी साइट को एक्सेस करते हो या यूज करते हो, उस समय पे उसके प्रोटोकॉल में यानी URL में सबसे पहले उसके आगे क्या लगा होना चाहिए, HTTPS। Then and only then you should proceed to access the particular site or the web page address. Otherwise, if there is no S specification in that HTTPS URL, it means there might be some trouble in future. So be careful about this kind of victimization.
Next type is here, file inclusion attacks. It is a type of attack that allows an attacker to access unauthorized or essential file which is available on the web server, or to execute malicious files on the web server by making use of the include functionality. अब फाइल इंक्लूजन अटैक जो है ये जनरली अटैक इसमें अटेम्प्ट्स यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले अटैकर जो है आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सो दे सिंपली इंजेक्ट मैलिशियस स्क्रिप्ट टू वेब एप्लीकेशन। ये किसी भी प्रकार का एक मैलिशियस स्क्रिप्ट जो है ये सेंड कर देते हैं कहाँ पर, सर्वर पर। सेकंड इज देयर malicious code is executed from attacker server. In the third step, server downloads malicious file from attacker server. And in the fourth, attacker gets control over the web application. तो जनरली जो भी हम लोग वेब एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं ये दोनों जो है पॉइंट 8 और टाइप 9 ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई फेक एड्रेस यूआरएल में पोस्ट कर दिया और अब आपको ये पता नहीं कि पर्टिकुलर साइट जो है ये ऑथेंटिक है या नहीं। मान लीजिए आपकी साइट के यूआरएल में HTTP लिखा हुआ है, वहां पे एस नहीं है, इसका अर्थ ये हो गया कि आपका जो वेब एड्रेस है वो सिक्योर्ड नहीं है। तो इस केस में ये फाइल इंक्लूजन अटैक जो है ये मैकेनिज्म यूज करके हैकर्स हमारी इंफॉर्मेशन इजीली ट्रैप कर सकता है और हम लोग रॉन्ग सर्वर पे हमारी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं या हम लोग रॉन्ग डोमेन को एक्सेस कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम लोग विक्टिमाइज हो सकते हैं इन फ्यूचर। सो दैट्स व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ अटैक दैट अलाउज एन अटैकर टू एक्सेस unauthorized or essential files which is available on the web server and to execute malicious files on the web server by making use of the include functionality. So whenever we have to access the any website or the any web address on the internet, we should be very much conscious. The next one is here, man in the middle attack. It is a type of attack that allows an attacker to intercept the connection between client and server and acts as a bridge between them. Due to this, an attacker will be able to read, insert and modify the data in the intercepted connection. जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो विक्टिम्स है, पर्सन ए और पर्सन बी, विक्टिम ए और विक्टिम बी। अब जनरली हम लोग हमारे फ्रेंड से अगर हमको कम्युनिकेट करना है वाया मशीन और वाया इंटरनेट, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, अग्री। लेकिन इन बिटवीन दिस ड्यूअल कम्युनिकेशन द पर्सन हु इज हैकर दैट वी कॉल्ड एज अ मैन इन द मिडल, ये क्या करेगा, ये बीच में हमारा जो कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करेगा ड्यू टू दिस काइंड ऑफ अटैक मैकेनिज्म, जिससे हम लोग जब भी किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं या किसी एज अ क्लाइंट हम लोग किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं या मशीन टू मशीन जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, इस मैकेनिज्म में ये जो हैकर्स है जो मैन इन द मिडल का रोल प्ले करता है एंड दे स्पूफ आवर कम्युनिकेशन, यानी हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है या हमारा जो भी कम्युनिकेशन टॉक है वो उसको हैक कर सकता है एंड इन फर्दर वे में इन द ट्रबल। तो अर्लियर केसेस में जैसे डिफेंस में भी ऐसा होता था या जैसे एनिमी कंट्रीज जनरली इस प्रकार के टैक्टिक्स यूज करते हैं कि जब भी हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है जैसे IIMs IIT हो गया या कुछ डिफेंस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है, इसकी इंफॉर्मेशन हैक करने के जनरली इस प्रकार की प्रैक्टिसेस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक्स। सो whatever we discussed till now, all these are the web application based attacks. Now we are shifted to the second type of attacks that we call as a system based attacks. So these are the attacks which are intended to compromise a computer or a computer network. Some of the important system based attacks are as follows. इस केस में जनरली हमें यहाँ पर टोटली 5 टॉपिक्स टाइप्स दिए हुए हैं। द वेरी फर्स्ट इज अ वायरस,
second is a worm, third Trojan horse, fourth backdoors, and the fifth one is a bots. The first case is here about the virus. It is a type of malicious software program that spread throughout the computer files without the knowledge of user. It is a self-replicating malicious computer program that replicates by inserting copies of itself into other computer programs when executed. It can also execute instructions that cause harm to the system. अब जनरली हम देखते हैं कि कई बार हमारा जो कंप्यूटर है, जैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और हम लोग अलग अलग साइट को सर्व करते हैं, उस समय पर अगर हमारे कंप्यूटर में प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है, if we don't have antivirus softwares installed in our computer, in that situation we might be a victimize of such kind of incidents. तो वायरस इन द सेंस, वायरस हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में अगर किसी पर्टिकुलर चीज का इन्फेक्शन हो गया तो हमारे बॉडी में एक प्रकार का इन्फेक्शन होने के बाद में एक वायरस जनरेट हो जाता है, and then we suffered with the different disease. The same kind of mechanism we have to follow in computer also. Hackers या जो ट्रैपर्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है ये हमारे कंप्यूटर फाइल में सेंड कर देते हैं वाया इंटरनेट, और इंटरनेट के द्वारा अगर हमारे सिस्टम को अगर किसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर से अगर इन्फेक्शन हो गया तो हमारे कंप्यूटर का जो डेटा है या हमारे कंप्यूटर का या सर्वर का जितना भी इंफॉर्मेशन है ये इजीली हैक हो जाता है, या कई बार ऐसा करते हैं ये लोग कि हमारे सिस्टम की जो फाइल्स है उसको डैमेज कर देते हैं और जिससे हमारे कंप्यूटर का डेटा या तो हैक हो सकता है या करप्ट भी हो सकता है. सो वी शुड बी वेरी मच कॉन्शियस whenever we are working in the online system mode. Second kind of system based attack is here worm. It is a type of malware whose primary function is to replicate itself to spread to uninfected computers. It works same as the computer virus. Worms often originate from email attachments that appear to be from trusted senders. अब जनरली वर्म्स जो होते हैं, जब हम लोग इंटरनेट पे हमारा ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं, याहू हो गया, जीमेल हो गया या रेडिफ मेल हो गया, या अपने अलग अलग जो भी हम लोग कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए मेल अकाउंट्स यूज करते हैं, तो उसके माध्यम से वर्म्स हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने का कोशिश हो सकता है. सो जैसे कई बार हमें अलग अलग हैकर्स के थ्रू अलग अलग प्रकार के मेल्स आते हैं, फेक मेल आते हैं, और जैसे हमने कोई एक मेल ओपन किया या इसकी कोई इमेज फाइल ओपन की या अगर हम कोई सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं, ऐसे केसेस में वर्म्स हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करने का कोशिश करता है. द थर्ड वन इज ट्रोजन हॉर्स. इट इज अ malicious program that acquire unexpected changes to computer setting and unusual activity. Even when the computer should be ideal state, it misleads the user of its true intent. It appears to be a normal application, but when opened, executed, some malicious code will run in the background. अब ये ट्रोजन हॉर्स इसे इसलिए कहा गया है कि ये क्या करता है कि जैसे हमारे कंप्यूटर में अगर कोई इन्फेक्टेड फाइल आ गई तो हमारे कंप्यूटर का जो डेटा है मैलिशियस कोड के द्वारा ये क्या करता है, उसको चुरा लेता है और हमारे अननोइंगली ये जो डेटा है किसी थर्ड सर्वर पर सेंड कर देता है, या हमारे सिस्टम की जो फाइल है यूजर को मिसलीड करके हमारा जो सिस्टम फाइल्स है या जो इंपॉर्टेंट डेटा है मैलिशियस कोड के द्वारा बैकग्राउंड में वर्कआउट होगा और किसी थर्ड सर्वर पर ट्रांसफर हो जाएगा और हमारे कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट डेटा हैकर्स के हाथ में लग जाता है. सो दिस इज अगेन द वन ऑफ द फेमस सिस्टम बेस्ड अटैक वी हैव ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस. नेक्स्ट है बैकडोर्स. इट इज अ मेथड दैट बाईपासेस द नॉर्मल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस.
a developer may create a backdoor so that an application or operating system can be accessed for troubleshooting or other purposes. अब इस केस में जो डेवलपर क्या होता है कि हम लोग जब अलग अलग सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं या एप्स डिजाइन करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बग्स जनरेट हो जाते हैं या ट्रबल शूटिंग करते समय भी ये बैकडोर से वायरस इन्फेक्ट हो जाता है और ये हमारे सिस्टम की फाइल्स को डैमेज करता है या करप्ट करता है. The very famous is here bots. A bot, or sometimes in short we have to pronounce as a robot, is an automated process that interacts with other network services. Some bots programs run automatically, while others only execute commands when they receive specific input. The common examples of the bot programs are crawler, chat room bots, and malicious bots. हम लोग क्या करते हैं जब हमारे बहुत सारे अलग अलग चार्ट बोर्ड्स यूज करते हैं, चार्ट रूम्स यूज करते हैं, टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको पता होगा, या बहुत सारे अलग अलग जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं हमारे, इस केस में बॉट्स जनरली जनरेट होते हैं और जो हमारा जो डेटा है वो हैक करने की कोशिश करता है. So that is also the one of the important system based attacks. Are you understood this one? Hello? Yes, sir. Everybody understood this one? Yes, sir. Okay. So after this, the 7 layers of cybersecurity mostly we have to use. There are, hello, there are 7 layers of cybersecurity we have to use. The very first is a mission critical assets. Second is a data security. Third is a application security. Fourth is a endpoint security. Fifth is a network security. Sixth is perimeter security, and the seventh one is the human layer. So in cybersecurity, we have mostly used these kind of layers for protecting our data from the hackers. The very first is here in mission critical assets. This is the data you need to protect. Second, डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल्स प्रोटेक्ट द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा. इस केस में क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट होता है हमारे लिए. इसको सिक्योर रखना और प्रॉपर डोमेन पे उसको सेंड आउट करने के लिए ट्रांसफर करना, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है डेटा सिक्योरिटी का. थर्ड इज देयर एप्लीकेशन सिक्योरिटी. Application security controls protect access to an application and application access to your mission critical assets and the internal security of the application. अब जनरली इस केस में क्या होता है कि जो एप्लीकेशन फाइल हम लोग अलग अलग यूज करते हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में यूज करते हैं या कई बार हमारे लैपटॉप या मोबाइल फोन में भी हम लोग यूज करते हैं. तो इस सिचुएशन में हमारा जो भी अलग अलग एप्स हम यूज करते हैं, तो हमने सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो भी ऐप हम लोग इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में या मोबाइल फोन में, वो ऑथेंटिक है या नहीं. इसलिए मोस्टली हमें इंटरनेट से कोई भी ऐप इंस्टॉल करने के पहले ये ऑब्जर्व करना चाहिए या ऑथेंटिकली ये चेक कर लेना चाहिए कि हमारी जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर रहे हैं, वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट. अदरवाइज we may in the trouble. Next is your endpoint security. In this case, endpoint security controls protect the connection between the devices and the network. अब ये जो साइबर सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसे हम endpoint security कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कनेक्शन फॉर्म किया है फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस और फ्रॉम डिवाइस टू नेटवर्क,
इस समय पर एंडपॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और जनरली ये हमारे कम्युनिकेशन मोड जो है इसको सिक्योर करने का मैकेनिज्म यहाँ पर यूज करता है। फिफ्थ वन इज योर नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ द नेटवर्क। अब नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए जैसे आजकल हम लोग वाईफाई नेटवर्क यूज करते हैं या हमारे पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अलग अलग प्रकार का नेटवर्क मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो इस केस में हमें हमारा जो नेटवर्क मैकेनिज्म है उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म या उसके जो फायरवॉल्स है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसको हमने प्रिकॉशनरी उसके लिए प्रिवेंशन मैकेनिज्म यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल वीपीएन नेटवर्क्स जो होते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, तो जैसे का कॉलेज कैंपस का नेटवर्क हो गया या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क हो गया, तो जब भी हम लोग किसी नेटवर्क मैकेनिज्म को हमारे डोमेन में यूज करते हैं, हमारे सिस्टम में यूज करते हैं, वहां पर नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने यूज करने चाहिए। फायरवॉल्स या उसके लिए स्पेसिफिक जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स आते हैं, वो हमने यहाँ पर यूज करने चाहिए टू प्रिवेंट आवर डेटा एंड टू सिक्योर आवर डिजिटल नेटवर्क्स। Next is here perimeter security. Perimeter security controls includes both the physical and digital security methodologies that protect the business overall. जनरली इस प्रकार का जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स है, ये जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं या और कई प्रकार के जो बड़े बिजनेस मैकेनिज्म्स होते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में हम इसको यूज करते हैं to maintain the physical and digital security of our data and to protect our business mechanisms. जैसे कि बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स होती है, उनके खुद के ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं या वहाँ पर MIS के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे इन्वेंट्री में होते हैं, शॉपिंग मॉल्स में होते हैं। ऐसे सिचुएशन में हैकर्स उनके डेटा को हैक करने की कोशिश करते हैं, या जो सर्विसेज डोमेन होती है, जैसे हम लोग बैंकिंग सॉफ्टवेयर देखते हैं, बैंकिंग में भी इस प्रकार के इंसिडेंट्स हो सकते हैं। बैंक के जो नेटवर्क है उसका डेटा भी हैक होने की कोशिश हो सकती है। सो इन दैट सिचुएशन आल्सो द पेरीमीटर सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज हियर द ह्यूमन लेयर। Humans are the weakest link in any cyber security posture. Human security controls include phishing simulations and access management controls that protect mission critical assets from a wide variety of human threats. Mostly from, possibly it could be from the cyber criminals, sometimes it may be from malicious insiders and negligent users also. So human layer, ये जो लेयर है साइबर सिक्योरिटी का, यहाँ पर काफी सारे लोग विक्टिमाइज हो जाते हैं और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसमें एक डिजिटल अरेस्ट का एग्जांपल है, या अभी AI बेस्ड जो अलग अलग विक्टिमाइजेशन के मैकेनिज्म हो रहे हैं जिसको हम लोग डीप फेक कहते हैं, ऐसे इंसिडेंट जो है ये इस लेयर में होने के चांसेस रहते हैं। So this is all about the 7 levels of cyber security, and we have to categorize all these with the network security mechanisms, and with these different layers we should have to take care of to maintain and some precautionary measures to maintain and preserve our data from the hackers. Now after this, the second topic of our discussion is now cyber threats. So let us clarify first, what do we mean by cyber threats? A cyber threat is a malicious attempt to access or damage computer system, networks, or sometimes a sensitive data
often by exploiting vulnerabilities. यानी अलग अलग प्रकार की साइबर थ्रेट्स होती है जो हमारी सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको हैक करने के लिए जो साइबर क्रिमिनल्स है इसको यूज करते हैं. So mostly common types of include malwares are like viruses and ransomwares are there. In some kind of social engineering networks, the hackers can use the phishing mechanism, and in distributed denial of service attacks, suppose you are working in the big network, in that case, there might be the possibility of distributed denial of service attacks, which overloads systems and insider threats from trusted users. ये सारे जितने भी साइबर थ्रेट्स हैं इसमें कई अलग अलग प्रकार के अटेम्प्ट्स यूज किए जाते हैं जिसके थ्रू हमारा जो डेटा है उसको हैक करने की कोशिश होती है. सो फॉर वी शुड टेक सम प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर हियर. सो देयर आर द different 5 types of cyber threats are available mostly. The very first is here malware. In the malware we can classify mostly viruses, worms, trojans and ransomwares. अब साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो जनरली ये टेक्निक यूज करते हैं कि हमारे सिस्टम में वाया नेटवर्क अलग अलग प्रकार के वायरस सेंड करेंगे, वर्म सेंड करेंगे, ट्रोजन सेंड करेंगे या रैंसमवेयर्स के जो वायरसेस है वो पोस्ट करेंगे, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा सिस्टम का जो डेटा है या तो वो हैक कर लेंगे, उसको चुरा लेंगे सिंपल भाषा में, या फिर हमारे सिस्टम की फाइल्स को डैमेज करेंगे, करप्ट कर देंगे या उसके फॉर्मेट चेंज कर देंगे, जिसके थ्रू हमारे सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो वॉश आउट हो जाएगा और जिससे हमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है इन फ्यूचर. फिशिंग, दिस इज अनदर टाइप ऑफ साइबर थ्रेट. सो डिसेप्टिव ईमेल्स और वेबसाइट्स मोस्टली यूज फॉर द विक्टिमाइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन. फिशिंग यानी क्या, जैसे कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक सिंपल लोकल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं कि जो फिशिंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब भी फिशिंग करने के लिए जाएंगे नदी किनारे या तालाब के किनारे, तो उसका जो हुक होता है उसमें सबसे पहले फिश को खाने के लिए कुछ फूड वहां पर छोटा सा पार्टिकल्स लगा देते हैं, जिससे फिशेस अट्रैक्ट हो जाती है और जैसे ही उसको जो फूड इंटेक एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है उसी समय पे वो जो फिश है उसके नेट में ट्रैप हो जाता है. सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म वी हैव टू फॉलो इन द फिशिंग वाया इंटरनेट. अब कई बार ऐसा होता है कि हमें अलग अलग प्रकार के लालच दिए जाते हैं ऑनलाइन नेटवर्क्स में, जिसे हम लोग कहते हैं डिसेप्टिव ईमेल्स और वेबसाइट्स. इसमें कई बार कुछ फेक वीडियोस सेंड किए जाते हैं, ऑडियो फाइल्स हो सकती है या फिर कुछ इमेजेस हो सकती है. कई बार ऐसा होता है कि हमें जो सोशल या हमारे जो कल्चरल गैदरिंग्स होते हैं उसमें हमें अलग अलग प्रकार के हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हमें विशिंग मैसेजेस आते हैं. कई बार फिशिंग का एक हेलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So phishing is a one kind of mechanism. In that case, most of the people will be victimized. अभी ये ट्रेंड बहुत पुराना हो गया कि जैसे हम लोग ईमेल पे हमको जनरली अलग अलग मैसेजेस आते थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वॉन यूके लॉटरी ऑफ $20,000. प्लीज सबमिट योर डिटेल्स, वी विल सेंड यू द मनी ऑन योर अकाउंट. ये एक फिशिंग का ही एक अटेम्प्ट है. या कई बार हम लोग फेक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, जैसे आजकल हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो जब भी हम लोग ऑनलाइन में
मनी ट्रांसफर करते हैं या जब भी हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं वाया डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर फिशिंग ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जो जनरली हैकर्स यूज करते हैं। तो बीइंग अ यूजर या बीइंग अ क्लाइंट, हम लोगों को अलर्ट होना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज वी मे इन बिग ट्रबल इन फ्यूचर। तो ये एक साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट है जो हमें प्रिकॉशनरी समझना आवश्यक होता है। नेक्स्ट इज देयर डिनायल ऑफ सर्विस और ओवरलोडिंग अटेम्प्ट्स या ओवरलोडिंग सिस्टम्स अटेम्प्ट कह सकते हैं हम इसको। डिनायल ऑफ सर्विस ये जनरली जो बड़े नेटवर्क्स होते हैं या जो बड़ी फर्म्स होती है जिसमें स्टूडेंट या जो भी यूजर है हमारे या हम जैसे लोग जो एकेडमिशियंस में फील्ड में काम करते हैं, हम लोग अलग अलग प्रकार के सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं या अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए वेबसाइट एक्सेस करते हैं और अलग अलग प्रकार से यूजर मोड में हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो कई बार जैसे आपने देखा होगा कोई गवर्नमेंट की साइट होती है, एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए डेडलाइन होती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और सेट एग्जामिनेशन। तो पर्टिकुलर साइट को क्रैश करने के लिए हैकर्स क्या करते हैं, वो साइट को हैक कर लेंगे और जब भी कोई यूजर उसके लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा, अब उसका सर्वर हैक होने के बाद में वो एक डमी सर्वर एक बना देता है, उसका क्लोन सर्वर बना देता है और जब भी हम पर्टिकुलर सर्वर के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हमारी रिक्वेस्ट किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर ट्रांसफर हो जाती है और पर्टिकुलर सर्वर की रिक्वेस्ट जो है वो क्रैश हो जाती है। कई बार फेक रिक्वेस्ट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स प्रिपेयर की जाती है और उसको सेंड किया जाता है। तो ये दोनों मैकेनिज्म जो है इसमें आते हैं जिसे हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। दिस मीन्स व्हाट, पर्टिकुलर सर्वर का जो रिक्वेस्ट मैकेनिज्म है वो ओवरलोड हो जाता है जिसके कारण पर्टिकुलर सर्वर क्रैश हो जाता है या डैमेज हो जाता है और उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको भी क्रैश किया जाता है। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर सर्वर को डैमेज करने के लिए भी हैकर्स डिनायल ऑफ सर्विस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। एक मैंने और अब बताया आपको मैन इन द मिडल, सो इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशंस। ये भी एक साइबर थ्रेट है जो हमने पहले भी इसके पहले डिस्कस किया हुआ था। मैन इन द मिडल में जैसे आप अगर आपके फ्रेंड को कॉल लगा रहे हो तो आपका कॉल अगर हैक हो गया वाया इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन मैकेनिज्म या जो वीपीएन नेटवर्क है, अगर उसमें मान लीजिए कि हैकर्स ने अगर इंटरफेयर करके उसका पूरा कंट्रोल अगर अपने पास में ले लिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है वन टू वन एंड पर, वो न होते हुए हमारा कम्युनिकेशन कोई थर्ड पर्सन ऑपरेट करता है। अभी एक पिछले मंथ में ऐसे कई सारे केसेस हुए कि ये मैन इन द मिडिल अटैक जो है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का अकाउंट उसने हैक कर लिया और उस स्टूडेंट के माध्यम से वो जिस ग्रुप में भी एक्टिवेट है वो स्टूडेंट, उसके नाम से किसी उसके फ्रेंड को कॉल करना या उसके नाम से किसी और ग्रुप में कुछ रॉन्ग मैसेजेस पोस्ट करना, जिसके थ्रू पूरा जो ग्रुप है, सारे ग्रुप की इंफॉर्मेशन ये ट्रैप कर लेते हैं और सारे ग्रुप का जो डेटा है, जो भी यूजर्स है, उनकी पूरी जानकारी इनके पास में आ जाती है। और इस सिचुएशन में जनरली ऐसा भी होता है कि हमारे आईपी एड्रेस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का अगर एक बार उनके पास चले गया, तो उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स के अकाउंट हैक हो जाते हैं या मैन इन द मिडिल अटैक्स के थ्रू हमारे आईपी एड्रेस भी ट्रैप आउट हो जाते हैं। सो nowadays these kind of attempts are mostly happen in our daily life routine or sometimes you may observe such type of situations also. The next type is here SQL injection. SQL injection में जनरली क्या होता है कि
जो हमारे जो इम्पोर्टेंट डेटाबेस है इसको हार्म करने की कोशिश की जाती है. सो थ्रू दैट एक्सप्लॉइटिंग आवर डेटाबेस वल्नरेबिलिटीज. एक बार अगर हमारा डेटाबेस क्रैश हो गया या हमारा डेटाबेस हैक हो गया तो पर्टिकुलर जो डेटाबेस है इसका मिसयूज हैकर्स किसी भी तरीके से कर सकते हैं. जैसे अगर आपने देखा होगा 1-2 साल पहले आपने अगर न्यूज़ सुनी होगी तो 1-2 कंट्रीज में उनका बैंकिंग सिस्टम का जो डेटा है वो टोटली हैक हो गया था. और ये जो अटेम्प्ट्स है जैसे नाइजीरिया के जो लोग हैं, नाइजीरियंस जनरली इसमें विक्टिमाइज थे. और साइबर क्रिमिनल जो थे वो भी जनरली नाइजीरियन लोग ही थे जिन्होंने कुछ कंट्रीज की जो बैंकिंग सिस्टम है उसका पूरा डेटा हैक कर लिया था. और जो यूजर्स है उनके अकाउंट में कितना अमाउंट है वो भी उन्होंने उसकी डिटेल्स लेने के बाद में यूजर्स के आईडी पासवर्ड भी ट्रैक कर लिए थे. और उनका जो फाइनेंशियल डिटेल्स है या उनकी जो फाइनेंशियल अमाउंट है वो भी किसी अननोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स via SQL injections we can face such type of troubles. So being a conscious user we should aware with these kind of cyber threats because cyber security threats are malicious behavior and which intended to steal the information or money also. So as you observed in this figure, we have a malware, phishing, ransomware, digital assaults, and the digital assaults via DOS also. तो हम लोगों ने काफी केयरफुल रहना चाहिए कि किस प्रकार की अलग अलग साइबर थ्रेट्स होती है और हमारा जो डेटा है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है किसी अननोन यूजर के पास विदाउट परमिशन नहीं जानी चाहिए. अंडरस्टूड? So let us discuss these things now one by one in detail. Malware. Malware, short form of malicious software, is a software designed to cause harm, disruption or unauthorized access to a computer, server or network. जैसे कि आपको एग्जांपल मैंने बताया वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, रैंसम. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जो टाइप्स ऑफ मालवेयर है जैसे रैंसमवेयर है इसमें जनरली ब्लैकमेलिंग के जो इंसिडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं. स्पाईवेयर में हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा है इस मालवेयर के थ्रू हमारा डेटा स्टीलिंग करने का अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है. एडवेयर्स, स्पैम्स यू एड स्पैम्स विल बी सेंड वाया एड्स. कई बार ऐसा होता है कि आजकल हम लोग जो सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं तो हमें मल्टीपल एड्स, एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाते हैं. इवन अभी हमारे मोबाइल फोन पर भी इस टाइप का इंसिडेंट्स हम मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं जिसमें कई बार स्पैम्स होते हैं. अगर आप अननोनली अगर आपने उस पर क्लिक भी कर दिया तो उतने ही कम समय में विद इन अ वेरी फ्यू सेकंड्स द प्रोसेस विल गेट स्टार्ट वाया द hackers. Our data will be start to hack out by the unknown users. Sometimes they can trap our IP address also, and sometimes they can transfer the important data files from our computer or from our system or from our mobile phones also. And in future, we may become the victimization of such attempt, and we have a big financial loss. So we should be conscious in such type of situations or the attempts. The next is worms. Worms spread across the computers also. Now these kind of bugs or worms can be interrupt our information. हाँ, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कई बार हम क्या होता है कि हम लोग कहीं बाहर आउटिंग के लिए गए हैं शॉपिंग मॉल में हमको फ्री वाईफाई मिलता है या ट्रेन में हो गया या बस स्टेशन पर हो गया. हम लोग चार्जिंग के जो केबल्स है वो भी यूज करते हैं.
अब चार्जिंग केबल्स में भी जो यूएसबी केबल्स है उसमें भी इस प्रकार के वर्म्स या बग्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में सॉरी हमारे मोबाइल फोन में या चार्जर के थ्रू वो इन्फेक्ट हो सकते हैं एंड लेटर ऑन within that particular time span our data can be transferred to the any unknown users or the servers. Trojan horse, as I already told you, sneak malware onto your PC. And the last one is your botnets, turn your PC into a zombie. So that is the one of the malware. Firewall is one of the important mechanism we have to use in our network security for preserving our data from any unauthorized users or from any unauthorized access. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जब भी हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं यहाँ पर अलग अलग यूजर दिए आपको, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। तो इंटरनेट से हमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कुकीज, वर्म्स, वायरसेस कंटिन्यूसली हैमिंग शुरू रहता है हमारे सिस्टम पे या हमारे नेटवर्क पे। वो नहीं होना चाहिए उसका इन्फेक्शन, उसके लिए हम लोग फायरवॉल यूज करते हैं। Am I audible to all of you? Hello? Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Yeah. So a firewall is a network security system implemented in software or hardware mostly that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predefined security rules. तो एक प्रकार से जैसे कि हमारे बॉडी में कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू इंजेक्ट विद सम डिफरेंट एंटीवायरसेस। हम लोग इंजेक्शन लेते हैं ना, जैसे भी हमें फीवर हो गया या किसी प्रकार का डिजीज या सिम्टम्स अगर दिखे हमारे बॉडी में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी में हमारी इम्यून सिस्टम जो होती है, आरबीसी जिसको हम कहते हैं, राइट ब्लड सेल्स, है ना, वो क्या करता है, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। वैसे ही ये फायरवॉल होता है जो हमारी सिस्टम की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, इन शॉर्ट। सो इट एक्ट्स एज अ बैरियर establishing a boundary between the trusted network, likewise a private home or the office network, and any untrusted unauthorized network such as the internet, to prevent unauthorized access and block harmful activities. यानी जब भी हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, हमारे कंप्यूटर पे हो सकता है, लैपटॉप पे हो सकता है, या हमारे कॉलेज प्रीमाइस के सिस्टम में हो सकता है, या हमारा इंडिविजुअल मोबाइल फोन हो सकता है, हमारा पर्सनल डिवाइस हो सकता है, किसी भी प्रकार का डिजिटल डिवाइस। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे सिस्टम में फायरवॉल्स होना बहुत आवश्यक है, जो कि एक बैरियर का काम करेगा किसी भी अनट्रस्टेड वेबसाइट्स या किसी भी अनट्रस्टफुल हैकर्स को ब्लॉक करने के लिए या हमारे इंपॉर्टेंट डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ फायरवॉल, which acts as a barrier between the trusted and untrusted networks. So we should consciously know what kind of firewalls activate in our systems, or what kind of firewalls we have to preserve in our system whenever we want to access the any kind of networks. So it's a common sense of good digital access mechanism. Now the next type is here, data encryption. अब encryption mechanism क्या होता है? Let us understand this. In cyber security, encryption is the process of scrambling readable data into an unreadable secret code using an algorithm and a decryption key, rendering it unintelligible to anyone without the correct key. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको आपके फ्रेंड को कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज कम्युनिकेट करना है वाया नेटवर्क। अब इस केस में
आपका मैसेज किसी अननोन पर्सन ने ट्रैप नहीं करना चाहिए, या आपका मैसेज किसी अनट्रस्टफुल नेटवर्क के थ्रू ब्रेक नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी इन द हिडन केस। इसके लिए हम एक जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है उसमें हम लोग मैसेज सेंडिंग के लिए इंक्रिप्शन मैकेनिज्म यूज करते हैं, जिसे हम लोग सीक्रेट की कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसको सिफर टेक्स्ट कहा जाता है कि जो भी टेक्स्ट मैसेज होगा आपका, वो क्या होगा, इट शुड बी इंक्रिप्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिफर टेक्स्ट। अब जब भी ये आपका जो एंड यूजर होगा, आपका फ्रेंड, जिसको ये आपको ये मैसेज पर्सनली सेंड करना है, वो उसी पर्सन के पास जाने तक वही पर्सन उसको ओपन कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट की। जब उसके एंड पर ये जाएगा, तब वहां पर वो सेम जो पिन, पासवर्ड या जो आपने कॉन्फिडेंशियल कोड आपने यूज किया होगा, वो ऑथेंटिक पर्सन ही उसे ओपन कर पाएगा, जिसको हम लोग हमारी भाषा में सीक्रेट की कहते हैं। तो सेकंड जो डोमेन होता है जो इसको यूज करेगा, उसे यूज करते समय वो डिक्रिप्शन करता है, यानी आपके मैसेज को वो ब्रेक करेगा, और जो भी कोड आपने किसी अलग फॉर्म में सिंबॉलिकली सेंड किया होगा, he or she can easily access that code or that message or the text. Such kind of mechanism is called as a encryption and decryption technique. नेटवर्क सिक्योरिटी में जब भी हम लोग नेटवर्क कम्युनिकेशन करते हैं वाया मेल, वाया व्हाट्सएप, या with the help of different social media communication mechanism, so in that situation, for securing our message and to sending our message from one end to other end, that means on the authenticate end, यानी आपके ग्रुप में आपके पर्सनल फ्रेंड्स को ही या आपका जो ग्रुप होगा उन्हीं को मैसेज जाना चाहिए। ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग इस इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज करते हैं। कंप्यूटर साइंस में इसके लिए कई सारे अलग अलग एल्गोरिदम्स दिए हुए हैं। इंक्रिप्शन टेक्निक के लिए जो अलग अलग एल्गोरिदम्स है, उसका यूज करके आज हम अपना डेटा बहुत ही सिक्योर लेवल पर सेंड कर सकते हैं ऑथेंटिकेट यूजर को, सो दैट और डेटा कैन नॉट बी ब्लॉक और ब्रेक बाय एनी अनऑथराइज्ड यूजर्स। So this is one of the important technique of network security. फिशिंग के बारे में हमने जो डिस्कस किया था, so this is also one of the important threats. जनरली सोशल मीडिया की जितनी भी साइट्स होती है, इसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारा डेटा हैक करने के लिए या डेटा थेफ्ट के लिए। So phishing is a social engineering attacks where criminals pose as legitimate entities to trick people into revealing sensitive information like passwords, credit card numbers, or financial details, or to install malicious softwares. So what is the basic goal of this particular? Steal credentials, financial data, or install malware. इस केस में हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, मोबाइल गेम्स खेलते हैं, और कुछ मोबाइल गेम्स ऐसे होते हैं कि जिसको हमें इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद ही वो प्रॉपरली एक्टिवेट होते हैं या प्रॉपरली वर्कआउट होते हैं। तो जो हैकर्स है, ये जनरली इस फिशिंग मैकेनिज्म के थ्रू हमारा जब भी हम लोग कोई नया ऐप या कोई नया सॉफ्टवेयर या कोई नया गेम जब इंस्टॉल करते हैं, उस समय पर वो आपको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि प्लीज सबमिट दिस इंफॉर्मेशन और प्लीज सबमिट दिस पर्टिकुलर फॉर्म। विदाउट सबमिटिंग दिस इंफॉर्मेशन, वी आर नॉट एबल टू सेंड यू द एप्लीकेशन ऑफ द पर्टिकुलर सर्विस सॉफ्टवेयर। अब ऐसे हम लोग अननोइंगली क्या करते हैं कि हमारी सारी डिटेल्स उसको दे देते हैं। जैसे कई बार हम लोग कुछ ऐसे ऐप यूज करते हैं, ऐप इंस्टॉलेशन के समय में आपको अलाउ के एक्सेस आते हैं कि अलाउ योर जीपीएस नेटवर्क, अलाउ योर कॉल डिटेल्स,
allow your phone call details or your personal photographs. तो ये जो अटेम्प्ट होते हैं इस समय पर हमने काफ़ी कॉन्शियसली थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ये ऐप हम लोग कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक कॉमन सेंस है, किसी भी यूज़र ने जब भी कोई ऐप हम लोग इंस्टॉल करते हैं ये प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना चाहिए, so that we can secure our system or data also via these kind of phishing mails or phishing applications. और कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो या जनरली छोटे बच्चे जो गेम इंस्टॉल करते हैं उस समय पे उनको OTP रिक्वेस्ट आती है। अगर इस समय में वहाँ पे फिशिंग अटेम्प्ट अगर एक्टिवेट है तो क्या होगा, जैसे ही अननोन यूजर से आपको रिक्वेस्ट आती है, मैसेज आता है कि प्लीज सेंड द OTP on the particular message or on the particular mail, तो जैसे आपने OTP सेंड कर दिया आपके सिस्टम का डेटा हैक हो जाएगा, आपका IP एड्रेस हैक हो जाएगा। अदरवाइज साऱ्या माहित आहे, दुसरं नवीन सांग मला काही। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि आपके सिस्टम का जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो भी ट्रैप आउट हो जाता है और आपका अमाउंट ट्रांसफर जाता है। Authentication, types of authentication. So authentication, mostly very important thing in cyber security. It is the process of verifying that a user, device or system is who or what it claims to be before granting access to sensitive information, applications or network. So in this case, mostly we have to use for the authentication purpose, we should be conscious about the passwords, biometrics और multi-factor authentication. जब भी हम लोग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म प्रिपेयर करते हैं हमारे सिस्टम का डेटा हैक नहीं होना चाहिए, इसलिए या तो सबसे पहली बात है आप जब भी पासवर्ड्स बनाते हैं आपका पासवर्ड इट शुड बी हाईली ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड्स। जनरली अपना जो पासवर्ड आप जनरेट करते हो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी लो केस ऑफ पासवर्ड्स। अब हैकर्स क्या करते हैं कि आपका जो डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट का जो डेटा है उससे आपकी इंफॉर्मेशन ले लेता है और वहाँ से आपको ट्रैप आउट कर सकता है। तो ऐसे केस में आप जब भी पासवर्ड्स बनाते हैं कुछ स्पेसिफिक तरीके से बनाना चाहिए। आपके सोशल मीडिया पे आपकी जो डिटेल्स या अकाउंट है इससे रिलेटेड आपका पासवर्ड नहीं होना चाहिए, सो दैट द एनी अननोन यूजर कैन नॉट ब्रेक योर पासवर्ड्स। इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो जनरली हम लोग अपने जीमेल अकाउंट में हम लोग यूज कर सकते हैं। 2 फेज ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। इवन अपने मोबाइल फोन में भी हमने जो सिस्टम सिक्योरिटी है उसमें 2 फेज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज करके रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी अननोन साइट या अननोन मैकेनिज्म को यूज करेंगे दैट टाइम यू शुड ट्रबल। लेट इट बी वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में जैसे हम लोग थंब इंप्रेशन एक ऑथेंटिक हो सकता है या हमारा रेटिना, सो दैट कुड बी अ वेरी highly secured mechanism nowadays we can use. Sometimes in some firms they can use certificate based authentication also or single sign on that we call as the SSO kind of authentication. Mostly this kind of authentication used in software companies or in defense mechanism. In defense mechanism mostly the people use nowadays the biometric via thumb or via retina, and token based authentication we can access nowadays in our biometric devices also. जैसे स्मार्ट कार्ड जो होता है, कार्ड स्क्रैचिंग जो होता है, ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। एक जैसे कि आपको पता होगा हाउ मेनी ऑफ यू आर विद डीप फेक के बारे में जानकारी है आप लोगों को? एनीवन?
Hello, am I audible to all of you? No, sir, no idea. Yes, no idea. हाँ, जनरली अभी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं हमारे जिसमें जो हैकर्स होते हैं ये एआई बेस्ड अटेम्प्ट यूज कर रहे हैं. Deepfake, that is digital arrest and all that thing. यस सर, यू आर वेरी करेक्ट. डिजिटल अरेस्ट ये एक प्रकार का अटेम्प्ट हो गया, लेकिन इसमें विक्टिमाइज होने के पहले क्या होता है, एक रिसेंटली अभी 6 महीने पहले का एक केस स्टडी है. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद द एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और काजोल. इनके साथ में इस प्रकार का विक्टिमाइजेशन अटेम्प्ट हुआ था, जो कि अननोइंगली हुआ था, जिसमें किसी पर्सन का, ये लोग क्या करते हैं, किसी पर्सन का जो वीडियो है उसको मॉर्फ करते हैं और उस पर्सन के थ्रू अननोइंगली ऐसे एक्टिविटीज डील करवाती है जो कि सोशल मीडिया में उनका जो इमेज है वो डैमेज हो जाएगा. ऐसा इनका एक वीडियो इन्होंने मॉर्फ किया था विद द हेल्प ऑफ डीप फेक मैकेनिज्म और वो सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया गया था. जब एक रिपोर्टर ने इनसे कांटेक्ट किया, रश्मिका मंदाना से, और उनको पूछा कि मैम had you prepared any of these kind of digital content on the social media and had you posted it? तो उन्होंने रिफ्यूज किया, जबकि उनको पता ही नहीं था कि इस प्रकार का एब्यूजिव एक कंटेंट उसमें डिजाइन किया गया था और जो उनकी इमेज को डिफेम करवा रहा था. तो इसका फिर उन्होंने एफआईआर कंप्लेंट की पुलिस स्टेशन में जाकर, और फिर साइबर सेल के थ्रू जो विक्टिम जिसने ये अटेम्प्ट किया था उसको ट्रैप किया गया और उसको पकड़ा गया. तो फ्रेंड्स, आजकल ऐसा भी होता है कि ऑथेंटिकेशन में हमें ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार का कंटेंट कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, और हमारी इंफॉर्मेशन अननोइंगली हम कहीं पर भी हमने शेयर नहीं करना चाहिए, पोस्ट नहीं करना चाहिए, so that nobody can access our personal information for the any wrong usage. अभी जैसे आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट का, अभी जो सर ने बताया, डिजिटल अरेस्ट में ये मैकेनिज्म जो है इसमें कई सारे ऐसे अटेम्प्ट हो रहे हैं. जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस का क्लोन बनाया जाएगा वाया एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स. अभी सोशल मीडिया में हैकर्स कई बार एआई के कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम अपने वॉइस का क्लोन बना सकते हैं या वीडियो का क्लोन बना सकते हैं, और किसी विक्टिम को अगर डिजिटल अरेस्ट के थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको ट्रैप करना है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, उसके वॉइस का क्लोन बनाया गया और उसके वॉइस के क्लोन से उसी के अकाउंट को हैक करने के बाद उसके रिलेटिव्स को या फैमिली मेंबर्स को कॉल किया जाएगा और बताया जाएगा कि आई एम इन ट्रबल, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पैसे की आवश्यकता है, आई नीड मनी इन सम सर्टेन सिचुएशन, प्लीज फॉरवर्ड मनी इन माय अकाउंट. अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि हमारे घर के मेंबर्स या हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, एंड दे कैन इमीडिएटली सेंड द मनी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन्स अकाउंट, whereas earlier the person's account is already trapped or hacked by the unknown users. And in some situation or in such type of circumstances, the person will lost their money. So that is the one case. अभी रिसेंट में पिछले 2 सालों में ये डिजिटल अरेस्ट की जो सिचुएशंस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे पेरेंट्स को कॉल आते हैं कि आपके लड़के या लड़की को हमने ड्रग्स का मिसयूज करते हुए या स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया करके, और सामने वाला जो व्यक्ति है वो फ़ोन पे बात करता है, वो बोलता है कि आई एम फ्रॉम सीपी ऑफिस, आई एम स्पीकिंग एन एसीपी ऑफ सोसो पुलिस ऑफिस और डिपार्टमेंट, और समटाइम्स आई एम फ्रॉम साइबर सेल ऑफिस, आपके फैमिली का मेंबर पकड़ा गया है इस प्रकार का अटेम्प्ट करते हुए और अब हम इसके ऊपर में चार्जशीट फाइल करने वाले हैं.
तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं, और जनरली आपने देखा होगा इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी हैकर्स है फैमिली मेंबर्स को वीडियो कॉल्स करते हैं, और वीडियो कॉल में दिखने वाला जो पर्सन है उसका फोटो भी क्लोन होता है, जो किसी पुलिस ऑफिसर का होता है, फेक पुलिस ऑफिसर का होता है. सो इन दैट सिचुएशन आल्सो द फैमिली मेंबर्स may get panic and they don't want to defame their identity in social level. तो कई बार वो क्या करते हैं कि उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं सर आप ऐसा मत कीजिए, तो हम आपको इतना अमाउंट दे देते हैं, या फिर वो सामने वाला आपको डिमांड करता है कि यू हैव टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट सो दैट वी कैन मैनेज द केस. दैट इज एग्जांपल ऑफ डिजिटल अरेस्ट. तो ऐसे केस में ऑथेंटिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा कि जब भी हमें कोई अननोन पर्सन कॉल करता है वीडियो कॉल पर, सो डोंट ट्राई टू रिसीव दैट ऑनलाइन वीडियो कॉल्स सो दैट वी कैन secure with the any kind of attempts, and we can prevent from all kind of incidents. Antivirus softwares, programs designed to detect, prevent and remove malicious softwares. Antivirus softwares in cybersecurity is essential for detecting, preventing and removing malicious softwares like viruses, worms and ransomwares from computer systems and networks. So what kind of functions we have to follow? Scan files and monitor system beware for threats. तो इस प्रकार के जितने भी साइबर थ्रेट्स है, इससे खुद को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना चाहिए कि जब भी हम कोई सिस्टम यूज करते हैं, नेटवर्क सिस्टम वाया इंटरनेट, वो किसी भी प्रकार का आपका डिजिटल डिवाइस हो सकता है, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप. तो सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए कि एक जो ऑथराइज एंटीवायरस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना चाहिए, या कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी यूएसबी या जो प्लगइन्स आप यूज करते हो वो भी ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, या हमने वो पहले पता कर लेना चाहिए कि वो प्रॉपरली हमारा खुद का अगर है तो ठीक है, किसी अननोन पर्सन का अगर आप यूज कर रहे हो, सो इन दैट टाइम you should be very much conscious. Now the next topic is here, common attack vectors. Attackers exploit vulnerabilities via emails, software flaws, unsecured networks, and compromised credentials to infiltrate systems. अब इसमें कॉमन अटैक वेक्टर्स में क्या होता है कि कई बार जो अटैकर्स अलग अलग प्रकार के अटेम्प्ट करते हैं, जैसे मोस्टली ईमेल अटैचमेंट्स होते हैं, या कई सारे वेबसाइट्स इन्फेक्टेड होती है, या जो ब्लैकलिस्टेड वेबसाइट्स होती है darkweb.com, या इस प्रकार की कोई अलग अलग प्रकार की जो एब्यूजिव इंफॉर्मेशन पोस्ट करती है, ऐसी वेबसाइट्स. सो डोंट यूज any of such websites or access such type of information in your secured network. Sometimes with the unsecured Wi-Fi networks also we may be victimized. As I told you right now, USB drivers, कई बार आप जो USB drivers या जो plugins आप यूज करते हो उसमें भी कई प्रकार के बग्स या वर्म्स हो सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल इंजीनियरिंग. सोशल इंजीनियरिंग में जैसे मोस्टली अभी व्हाट्सएप के थ्रू भी ऐसे कई सारे अटेम्प्ट हो रहे हैं, या सोशल इंजीनियरिंग में हमारा फेसबुक एक सबसे बड़ा मैकेनिज्म है सोशल मीडिया अकाउंट्स का, ट्विटर हो गया, या कई सारे अलग अलग. इसमें जब भी हम लोग इसको एक्सेस करते हैं, कई बार हमारा फेसबुक अकाउंट भी हैक हो जाता है और हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी उसका क्लोन अकाउंट जनरेट कर लेता है हैकर, और आपके नाम से या आपके ही फोटो का यूज करके आपके नेटवर्क में जितने लोग हैं उनसे डमी फ्रेंडशिप फॉलो करता है, और फिर आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो ट्रैप कर लेते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन अटैक वेक्टर्स. नाउ the next topic is here,
Impact on individuals and organizations. Cyber threats cause significant financial loss and erosion of trust, affecting both individuals and corporations operations globally. तो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहला होता है फाइनेंशियल लॉस, सेकंड आइडेंटिटी थेफ्ट, थर्ड प्राइवेसी इन्वेशन, फोर्थ साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट, फिफ्थ ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन, सिक्स्थ लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सेवंथ इज नेशनल सिक्योरिटी रिस्क. अब ये हमने जो आज टॉपिक डिस्कस किया है साइबर थ्रेट्स एंड साइबर सिक्योरिटी, अगर आप इसके विक्टिम हो गए या किसी हैकर्स ने आपके ऊपर इस प्रकार का कोई साइबर अटैक किया, तो सबसे पहला मेन इशू होता है फाइनेंस. आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के पास ट्रांसफर हो गई तो आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. सबसे बड़ा एक लॉस है हमारे लिए आज. कई बार हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट होने के कारण क्या होता है कि हमारा सोशल इमेज जो है वो डिफेम किया जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ वुमेन्स या यंग गर्ल्स. आपकी इमेज का क्लोन किया जाएगा, इमेज मॉर्फ करके किसी न्यूड फोटोज के साथ पोस्ट कर दी जाएगी और आपको डिफेम किया जाएगा या ब्लैकमेल भी किया जाता है. सो दैट इज द केस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट एंड प्राइवेसी इन्वेंशन. तो आपकी जो पर्सनल प्राइवेसी है या आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ब्रेकआउट होने की कोशिश होती है. इसका सबसे बड़ा एक और इम्पैक्ट होता है कि साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट. कई बार सोशल मीडिया के थ्रू जब हम लोग नेटवर्क एक्सेस करते हैं या सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं, तो उसमें जैसे आप विक्टिमाइज हो जाते हैं वाया हैकर्स, तो साइकोलॉजिकली आप कई सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं. कई बार आपको अलग अलग प्रकार की थ्रेट्स दिखा के मेंटली टॉर्चर किया जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स आपको कॉल किया जाता है, और जिसके थ्रू पर्टिकुलर पर्सन की इमेज डिफेम करने के बाद उसका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है. या कभी कभी कई सारे केसेस में हमने देखा है गर्ल्स के बारे में कि उनका फिजिकल एक्सटॉर्शन भी किया जाता है, या उनको जो रॉन्ग माल प्रैक्टिसेस है वो करने के लिए भी उनको ट्रैप किया जाता है और टॉर्चर किया जाता है. सो समटाइम्स द पर्सन कैन suffer with psychological and emotional tragedies also. So that is the case. ऑपरेशनल डिस्क्रिप्शन में कई बार हमारा ऑफिस का डेटा, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, या हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, फर्म की या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, ये भी उसमें थेफ्ट आउट की जाती है. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें नेशनल सिक्योरिटी रिस्क. जो हमारी नेशनल इंटीग्रिटी है या नेशनल सिक्योरिटी की जो हम बात करते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसर्च फर्म्स है या जो कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ऐसे फर्म्स है, इसका डेटा भी थेफ्ट आउट किया जाता है कई बार, या उसके लिए भी साइबर अटैक्स किए जाते हैं वाया पाकिस्तान और वाया चाइना मोस्ट ऑफ द टाइम्स. So we should have a very much consciousness with these cyber threats, and we have to take some precautionary measures. So what kind of measures we should be follow being a user? Let us discuss these things right now. सबसे पहले जैसे मैंने बताया था आपको कि your password should be very strong and your password should be very unique. Second is enable multi-factor authentication. And always keep your softwares and system updated. तो जैसे आप अगर आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके पैच फाइल्स नेटवर्क पे होते हैं, वो टाइम बाय टाइम आपने अपडेट करते रहना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर या आपका एंटीवायरस. सो प्रिकॉशनरी मेजर्स इज देयर. So we should have to install antivirus and firewall protection. And again, nowadays it's our digital duty or it's our digital social cause is there. Let us educate the users about the different threats. As many of the peoples
might be aware with such type of situations or such type of incidents. So far now, that is our responsibility and duty to aware the different peoples in our social domains, especially illiterate peoples or the farmers. So preventive strategies are there. We have to use multi-factor authentication. Then reputable antivirus or firewalls we have to use or we have to purchase. So be wary of phishing and suspicious links. Don't open any suspicious links or any kind of offerings via social media accounts or WhatsApp. And always keep your information very personal. And most of the times, try to create your data backups. Whatever the data backups data you have to use in our daily life routine. Again, I want to mention over here one important thing, especially for girls or women. Don't post your individual photographs on the social media accounts. So this could be the preventive strategies for the peoples. And detection and response techniques we have to use. So 3 steps of managed detection and response. Very first is the monitor, second one is the detect, and the third one is the respond. So whenever we have these kind of cyber threats, we should have to follow the cyber threat detection response that we call as a TDR. Combines various techniques and technologies like endpoint detection and response EDR. Sometimes we have to follow network detection and response NDR. And the third one is here, external detection and response XDR to identify and mitigate security threats. So this could be identified most of the times by the VPN networks in virtual private networks, or sometimes this kind of mechanism nowadays can be followed by most of the smart antivirus system softwares also. So we have to follow some tools over here. Cybersecurity best practices include using strong, unique password and multi-factor authentication, regularly updating software, backing up data offline, and implementing firewalls and antivirus softwares. The key tools are there, and the techniques also include regular security audits. Nowadays, most of the firms should have to follow their CIA. That is one kind of security audits we have to follow within a 6 month or within a year, so that we can preserve our data from unauthorized users. And penetration testings using VPNs for secure connections. In most of the secure network, we should have to follow the data encryption mechanism for handling the sensitive data and providing security awareness training for users to prevent with these kind of incidents like phishing or different social engineering attacks. So emerging threats like ransomware as a service and AI-driven attacks are mostly nowadays happen in our daily life routine, and we have AI-driven attacks increase complexity and require advanced countermeasures. Advanced threats are sophisticated attacks that evade defense by using techniques like malware, phishing, and supply chain attacks. For that, we should have to follow advanced persistent threats, being a prime example of stealthy long-term breach, so that we can prevent our data. Nowadays, we observe that emerging attack leverages via artificial intelligence, exploit vulnerabilities of our data, and target supply chains for broader impact, making it crucial to implement advanced threat prevention and stay updated on evolving attack vectors. So for that, legal and ethical considerations we have to follow. In cybersecurity involve navigating complex issues like data privacy, informed consent, authorized access, professional accountability,
all while complying with data protection laws and maintaining public trust. तो जब भी हम अपना डेटा कहीं एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं, तो हमने ऑथेंटिकेट नेटवर्क ही यूज करना चाहिए और मोस्टली जो प्राइवेट नेटवर्क्स है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, वही यूज करने चाहिए सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर डेटा। और डेटा प्रोटेक्शन के जो लॉज होते हैं वो भी हमने इसमें फॉलो करने चाहिए। So in emerging trends nowadays we have with AI and ML, artificial intelligence and machine learning, the adoption of zero trust architecture and increased focus on IoT and cloud security. अभी फ्यूचर में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या IoT बेस्ड या क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो IoT और क्लाउड सिक्योरिटी के लिए जो सिक्योर्ड साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क जो आते हैं वही हमने यूज करने चाहिए। So the key challenges involve the growing sophistication of attacks like AI-driven social engineering and ransomware, the cybersecurity skill gap, and managing risks from supply chains and increasingly complex IT environment. So friends, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी हमारे लिए कि अभी हमारे इंडिया में इतने साइबर सिक्योरिटी प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए हमारे पास इतना स्किल मैन पावर नहीं है। सो दैट इज द वन ऑफ द बिग इशू। या ऐसे सप्लाई चेन मैकेनिज्म हमारे पास में नहीं है। कुछ ही फर्म्स ऐसी है जो बड़े सॉफ्टवेयर Sir? कंपनीज या जो Excuse me, sir. यस मैडम। Sir, how much slides are remaining? हेलो, बस मैडम एक 2-3 आया रहता। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ ठीक आहे। एक हीच स्लाइड एक्सप्लेन करायची आहे, मग आटोपतच आलाय मॅडम आता। बरं बरं सर, ठीक आहे। हाँ, so friends, that is one of the important challenging issue nowadays we are facing. When are here to access the AI-based softwares, let it be installed from the authenticate applications only. Otherwise, nowadays we may in trouble. अभी एक लास्ट एक 6 महीना पहले एक नया एक ऐप हमने यूज किया था, जिबली नाम का एक ऐप था। आई थिंक सम ऑफ यू मे माइट बी अवेयर विद दैट। पता है क्या आपको जिबली करके, जिसमें हमारा जो इमेज है उसका एक कार्टून जनरेट हुआ था। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। या अभी एक ट्रेंड करके शुरू था एक लास्ट मंथ में, जिसमें किसी भी पर्सन का अलग अलग वेयरिंग्स में, ड्रेसेस में फोटोज जनरेट हो रहे थे, मल्टीपल फोटोज जनरेट हो रहे थे अलग अलग लुक में। सो फ्रेंड्स, दिस इज आल्सो द वन ऑफ द टाइप ऑफ रिस्क नाउडेज वी आर फेसिंग, क्योंकि ये जो ऐप है इसमें जो ऑटोमेटेड जनरेशन मैकेनिज्म जो हम यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा इमेज का क्लोन बन सकता है या इलीगल एक्टिविटीज का हमारा एक वीडियो जनरेट हो सकता है, या हमारे न्यूड फोटोज भी कहीं पर सोशल लेवल पर सर्कुलेट हो सकते हैं और जिससे हमें कोई भी इजीली ट्रैप कर सकता है। सो दिस इज फ्रॉम माय एंड। वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर प्रीति धार्मिक मैडम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी ऑन दिस ओकेजन and giving me opportunity to deliver my presentation. And I am very much thankful to all dear participants for my patience and listening words. Once again, thanks to all of you. Thank you so much, Dr. Kishore Dhole sir, for a good start and a kick start of this cybersecurity short-term program. You have explained the basics of cybersecurity, different types of cyber threats, and many other aspects related to cybersecurity. Friends, if you have any query, you can unmute yourself and ask. Sir has other 3 sessions with all of us in near days. So आप queries note down भी करके रख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब सर आते हैं तब भी हम एक बार डिस्कशन कर सकते हैं। अभी किसी को कुछ क्वेरी है तो यू कैन आस्क। Sir, Yes, sir. man in the middle attack का है।
Man in the middle Hello. attack. Man in the मॅन इन हाँ, द हाँ. मिडल अटॅक बद्दल विचारत आहे सर. यस सर, यस सर. एंड इन द मिडल अटैक में जनरली क्या होता है कि जैसे आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका कम्युनिकेशन वाया नेटवर्क हो रहा है, इसमें अगर जो हैकर्स है उसने अगर आपका अकाउंट हैक कर लिया है तो आपका जो भी पर्सनल कम्युनिकेशन होगा वो सारा का सारा थर्ड पर्सन के थ्रू ट्रेस आउट हो जाएगा. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में या बॉस को कुछ मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, तो वो मैसेज को भी वो इंटरप्ट कर देगा और कुछ रॉन्ग मैसेज पोस्ट कर देगा, जिससे नेक्स्ट पार्टी में आपके बारे में डिफेम क्रिएट हो जाएगा या आपका मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट हो जाएगी. तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स वाया ईमेल्स हो जाते हैं. अगर 1-to-1 कम्युनिकेशन हम करते हैं, जैसे फोन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इस केस में भी आपका जो भी प्राइवेट या पर्सनल कम्युनिकेशन है वो सारा का सारा हैकआउट हो जाएगा, ट्रेस आउट हो जाएगा और उसके थ्रू कोई अननोन यूजर जो है या हैकर्स है आपको टॉर्चर करने का या आपको किसी अलग प्रकार की थ्रेट्स शो करके आपकी प्राइवेसी को डिफेम करने की कोशिश कर सकता है या आपसे कुछ फाइनेंशियल डिमांड भी कर सकता है. ओके सर. ओके सर. Thank you. थँक्यू. या Thank you. तो सर आपण इथे थांबूया आता बिकॉज इट्स सर किसी को और कुछ क्वेरी है तो आप नोट डाउन करके रखिए बिकॉज इट्स 12:10 वी हैव टू टेक अ ब्रेक because we have next session at 12:30 immediately. So we will wind up our first session here. I extend my sincere thanks to respected Dr. Kishore Dhole sir for giving a valuable insight on the topic of introduction to cyber security. Thank you so much sir on behalf of all the participants. थैंक यू मैडम. थैंक्स अ लॉट Thank you, sir. डियर फ्रेंड्स. Yes. Thank you. Thank you sir. Yeah. So Bye. friends, you please proceed for your lunch break. Thank you. Yes, please don't leave the meeting. Participants, please be attentive. Don't leave the meeting. Stay connected क्योंकि फिर से आपको कनेक्ट करने के लिए दिक्कत जाएगी. तो अभी आप कनेक्टेड है तो वैसे ही सिस्टम को रहने दीजिए. आप फटाफट अपना लंच कर लीजिए and come Madam, back. shall I leave now? Yes sir, yes, you can leave sir. Yeah, Thank you ma'am. so much. Thank you, ma'am. Thank you. Have a good day. Good day sir. So friends, you take your refreshment break of 15 to 20 minutes. We'll start our next session at 12:30 immediately. मॅडम सेकंड सेशनला आपल्याला अटेंडन्स घ्यायचा का पुन्हा? नाही सर, एका दिवशीच अटेंडन्स एकदाच अटेंडन्स द्यायची आहे सकाळी. ओके, थँक्यू मॅम. ठीक है, ओके. कोई अगर भूल गया होगा अटेंडेंस मार्क करना, आज का फर्स्ट डे है, अभी भी मैंने ओपन रखा है उसको, आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लीजिए. और जिन लोगों का हो गया है, यू प्लीज प्रोसीड फॉर योर लंच ब्रेक. वी विल मीट एट 12:30. मैं मीटिंग को एंड नहीं कर रही हूँ, मीटिंग ऐसे ही शुरू रहेगी. आप लोग सभी लोग म्यूट कर लीजिए और अपना लंच करिए. 12:30 बजे हम नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं. थैंक यू एवरीवन.